Welcome students. Welcome to the e-learning session of accountancy. Today we'll start a new chapter, that is chapter 4. Okay, the name is process and basis of accounting. Process and basis of accounting. Okay. Under this chapter, we'll cover the following topics. The first one is process of accounting. The second one is basis of accounting. Okay, cash basis and accrual basis. What is the difference between cash and accrual basis? And the last topic is mixed or hybrid basis. ठीक है, तो ये हम लोग ये टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं. Let's start with the process of accounting. That is our first topic. Process of accounting. Now, as we have studied from the very first chapter, accounting, meaning and objectives of accounting. From there, you have studied accounting cycle. Accounting cycle has many steps. Okay, it has various stages and it goes on and on in a cyclic manner, cyclic fashion. That is why we call it a cycle. And a cycle means something will go on and comes back again and again. It will be repeated. Repeatedly होते हैं उसको हम cycle बोलते हैं. So accounting cycle में जो stages हम लोगों ने देखी, we'll talk about them now. These are known as process of accounting. Process of accounting accounting के दौरान क्या क्या stages होती हैं, क्या क्या steps involved होते हैं, ठीक है? So let's begin with the first step, that is identification of transactions. Identification of transactions. सबसे पहले, as soon as a transaction occurs, the first thing that we do is to identify whether that transaction is capable of being recorded. ठीक है, क्या हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं? कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? We have to see whether the transaction is monetary or non-monetary. If it is a monetary transaction which can be measured in terms of money, that means we can measure them and we can record them. ठीक है, लेकिन अगर it is not measurable in terms of money, if it is a non-monetary transaction, then we ignore them. So first step is our identification. So we identified all the transactions as soon as they occur, and then we evidence them with the help of certain source documents. हम एक source document बनाते हैं जो कि evidence होता है ना? It acts as an evidence of these transactions कि ये मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस हुए हैं. ठीक है, कैश मेमो वगैरह है ना, ये सब तरीके के जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या काम करते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ एक तरह के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं कि ये ट्रांजैक्शंस अकर हुए हैं. Once the transactions have been identified and they are backed by the source document, we go to the next step of recording it in the voucher. The you can say recording भी नहीं, आप बोल सकते हैं entering in the voucher, है ना? आप एक voucher prepare करते हो. हर एक organization का अपना voucher होता है. They have their own vouchers. They print it, है ना? वो print करवा के रखते हैं उन vouchers को. उसमें vouchers में specifically mentioned होता है. पहली बात तो वो chronological order में होता है. Chronological मतलब date wise. And serially numbered होता है 1 2 3 4 करके, and it is kept in files. ठीक है, कैश वाउचर्स होते हैं, क्रेडिट वाउचर्स होते हैं. स्पेसिफिकली दे मेंशन which account is to be debited and which will be credited. तो इससे आपकी ना रिकॉर्डिंग इजी हो जाती है. अंडरस्टूड? तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं बना के, मतलब मेमो वगैरह नहीं बना के, डायरेक्टली ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इनटू द वाउचर एंड फ्रॉम वाउचर वी डू द एंट्री. From voucher we do the recording. ठीक है, तो वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट जो है, ज्यादातर तो सोर्स डॉक्यूमेंट बनते हैं और वाउचर्स भी एंट्री होती है, लेकिन समटाइम्स और यू कैन से इन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन इट मे सो हैपन दैट दे स्किप द स्टेप ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर इज देयर सोर्स डॉक्यूमेंट. वाउचर इटसेल्फ बिकम्स देयर सोर्स डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो एक पहला एंट्री होता है उनका. ठीक है, तो वो और कोई सोर्स डॉक्यूमेंट अलग से मेंटेन नहीं करते, वो वाउचर्स की एंट्री को ही सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह यूज करते हैं. ठीक है, तो वाउचर्स में क्या होता है? इट एक्ट्स एज एन एविडेंस दैट फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस हैव अकर्ड. दे आल्सो गाइड अस दैट हाउ वी शुड, व्हिच अकाउंट विल बी डेबिटेड, व्हिच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, है ना? एंड डेट वाइज इट इज मेंटेन्ड सो दैट यू हैव अ प्रॉपर रिकॉर्ड दैट दीस ट्रांजैक्शंस हैव एक्चुअली टेकन प्लेस. ठीक है,
So that was the second stage or second process or second step of the process, you can say, preparation of vouchers. And next is recording in the books of original entry. Books of original entry मतलब अब जाके accounting का स्टेज स्टार्ट हुआ है. अभी तक हम जो कर रहे थे पेपर वर्क था, अब जो है प्रॉपर अकाउंट्स आ गया है ना. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं. ओरिजिनल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री मीन्स व्हाट? इट इज द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम एंट्री करते हो ट्रांजैक्शन की प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है. अभी तक तो आप सिर्फ और सिर्फ जिसको बोलते हैं ना वाउचर में लिख रहे थे कि हाँ ये हुआ है, लेकिन अब आप जो मेन अकाउंट्स के तरीके को, यू आर फॉलोइंग द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड यू आर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड प्रॉपरली इन द जर्नल बुक. ठीक है, तो जर्नल बुक जो होती है उसको हम बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री. ठीक है, क्योंकि वहां पे फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग होती है किसी भी ट्रांजैक्शन की. आप ध्यान दीजिएगा कि मैं वर्ड यूज कर रही हूँ रिकॉर्डिंग, एंट्री नहीं यूज कर रही हूँ. एंट्री तो वाउचर में हो चुकी है ना. हम अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन प्रॉपरली बाय यूजिंग द अकाउंटिंग रूल्स. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़ा है उनको फॉलो करते हुए अब हम अकाउंटिंग स्टार्ट कर चुके हैं. हम अकाउंट्स में अपने जो ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं. ठीक है, so recording is done first time in the books of original entry which are known as books of primary entry or journal. क्या होता है कि जर्नल में भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही रिकॉर्डिंग होती है, नरेशन होता है, जो कि हम जर्नल वाले चैप्टर में देखेंगे. ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट होता है. व्हाट यू नीड टू नो इज जर्नल बुक जो होती है, अगर कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, देयर इज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर नॉट वेरी बिग, नॉट वेरी लार्ज, है ना, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस नहीं है, तो एक सिंगल जर्नल बुक से काम चल जाता है. सारे ट्रांजैक्शन वाउचर से सीधे जर्नल में जाते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, है ना. एंड देन फ्रॉम देयर वी प्रिपेयर द, वी पोस्ट देम टू द लेजर. बट मोस्टली व्हाट हैपेंस इज ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी बिग, दे हैव वेरियस टाइप्स ऑफ बल्क ऑफ ट्रांजैक्शन, है ना. बहुत तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं और बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं. जब बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगे, यू कैन नॉट मेंटेन वन सिंगल बुक टू रिकॉर्ड ऑल दोज ट्रांजैक्शन, है ना. सारे के सारे ट्रांजैक्शन जर्नल में एंटर नहीं कर पाएंगे, एक ही दिन में जर्नल फुल हो जाएगी. सो व्हाट वी हैव टू डू इज देयर वी एंटर इन सच केसेस वेयर द ट्रांजैक्शंस आर टू मेनी, ओके, एंड दे हैव वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, देन we maintain subsidiary books of journal. जर्नल ही होते हैं लेकिन उनके सब्सिडियरीज होते हैं. सब्सिडियरीज मतलब उसकी ब्रांचेस, जैसे कि सेल्स बुक, परचेज बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, कैश बुक, है ना, डेटर्स की बुक, क्रेडिटर्स की बुक, ये सारी चीजें हम लोग मेंटेन करने लगते हैं. जर्नल प्रॉपर, देयर इज अ सेपरेट चैप्टर ऑन दिस टॉपिक. ठीक है, सब्सिडियरी बुक पे एक सेपरेट चैप्टर है आपका. अभी ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी जर्नल होता है ना, तो जर्नल में अगर हम सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैं, तो हम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस के लिए स्पेसिफिक बुक बना देते हैं जो कि जर्नल ही है लेकिन जर्नल का सब्सिडियरी है. ठीक है, फॉर्मेट विल बी लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द जर्नल. क्या होता है कि सेल्स की जितने भी ट्रांजैक्शन है वी एंटर देम इन सेल्स बुक. अगर सपोज करिए सेल्स तो हो ही रहा है, साथ में सेल्स रिटर्न भी बहुत ज्यादा हो रहा है ना. ड्यू टू सर्टेन रीजन हम जो भी सामान बेचते हैं उसमें रिटर्न बहुत आता है ना. तो इन दैट केस वी हैव टू मेंटेन सेल्स रिटर्न बुक आल्सो टू रिकॉर्ड दोज ट्रांजैक्शंस, क्योंकि वो ट्रांजैक्शंस भी बहुत ज्यादा है. आप उसको सेल्स के साथ ही मिक्स नहीं कर सकते हो, इतने ज्यादा ट्रांजैक्शंस है. तो सेल्स बुक अलग मेंटेन कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न बुक अलग मेंटेन कर रहे हैं. सिमिलरली परचेजेस अगर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, if you are having too many transactions on purchase, in that case purchase book will be there. If there are large number of purchase returns, in that case purchase return book will be there, debtors book will be there, creditors book, bills receivable, bills payable, all these books will be maintained. एक पर्टिकुलर बुक होती है दैट इज कैश बुक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर सिलेबस. यू विल हैव इट एज अ सेपरेट चैप्टर. ठीक है, कैश बुक. तो बाकी के सब्सिडियरी बुक्स एक तरफ, कैश बुक इज सेपरेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो कैश बुक में क्या होता है, अगर सपोज करिए किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हैज अ लार्ज नंबर ऑफ कैश ट्रांजैक्शन,
है ना, कैश का लेन देन बहुत ज्यादा होता है, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो बहुत हो रहा है, उस समय आप जर्नल में अगर सारे कैश के ट्रांजैक्शंस डालोगे ना तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। इन दैट केस वी मेंटेन अ सेपरेट बुक फॉर कैश ट्रांजैक्शन, जिनका डीलिंग हो रहा है कैश में, जो भी कैश रिसीव हो रहा है या कैश पेमेंट हो रहा है, हम जितने भी कैश रिसीव कर रहे हैं या पे कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी रीजन से हो, है ना, बिजनेस रीजन से, दे आर रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक डायरेक्टली, उनका जर्नल से लेनी देनी नहीं होता, ठीक है। फिर और भी तरीके के बहुत सारे तरीके के हमारे सब्सिडियरी बुक्स में एक जर्नल प्रॉपर है, वो एक्चुअल में क्या होता है, जो ट्रांजैक्शंस कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होते फिर वो जर्नल प्रॉपर में चले जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस वेज इन विच वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, ठीक है। अगर थोड़े से ट्रांजैक्शन हैं तो डायरेक्टली सारे ट्रांजैक्शन हम जर्नल में डाल देंगे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हैं और पर्टिकुलर वेराइटी के ट्रांजैक्शन हैं तो एक पर्टिकुलर वेराइटी की सब्सिडियरी बुक ऑफ जर्नल हम मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सभी वेराइटी के ट्रांजैक्शन बहुत सारे तो सारी ही सब्सिडियरी बुक्स मेंटेन होगी, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर सारी बुक्स मेंटेन हो जाती है, ओके। नेक्स्ट इज पोस्टिंग टू द लेजर। पोस्टिंग मीन्स क्लासिफिकेशन, स्टेज ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला स्टेज हमने रिकॉर्डिंग का पढ़ा था, उसके बाद क्लासिफिकेशन, मतलब जो भी सेम टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं ना, जैसे सेल्स के जितने ट्रांजैक्शन है वो सेल्स के एक अकाउंट बना दिया, सारे सेल्स के ट्रांजैक्शन डाल दिए, है ना, क्रेडिट सेल्स, है ना, क्रेडिट परचेजेस के ट्रांजैक्शन डाल दिए, उसी तरह से हमारे कैश के ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में डाल दिए, या तो आप कैश बुक बना लो या फिर आप कैश अकाउंट बना लो, दोनों एक साथ में नहीं बनता, है ना। अगर कैश बुक बना रहे हो तो कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू आर मेकिंग कैश अकाउंट देन डोंट मेक कैश बुक, ठीक है। तो मतलब जो भी ट्रांजैक्शन है वो डायरेक्टली उस तरीके के जो अकाउंट है उसकी ग्रुपिंग कर दी जाती है ना, उसमें क्लासिफाई कर दिया जाता है। सेल्स के ट्रांजैक्शन सेल्स में चले गए, सेल्स अकाउंट में, डेटर्स वाले ट्रांजैक्शन डेटर के अकाउंट में चले गए, पर्टिकुलर कोई एसेट है तो उनका अलग अलग अकाउंट बन जाता है, लायबिलिटीज का अकाउंट बन जाता है ना। तो इस तरह से अलग अलग अकाउंट बन जाते हैं और उनके जितने भी ट्रांजैक्शन हैं वो उसमें चले जाते हैं, ओके। तो ये होता है ग्रुपिंग, दिस इज क्लासिफिकेशन एंड दिस इज व्हाट वी कॉल पोस्टिंग टू द लेजर। ये तो अलग अलग अकाउंट्स है ना, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, ये अकाउंट, वो अकाउंट, दीज आर व्हाट, दीज आर लेजर अकाउंट्स, दीज आर लेजर अकाउंट्स, ठीक है। लेजर में हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं, जिससे कि हम सारे ट्रांजैक्शन को बार बार रिपीट नहीं करना पड़े, क्योंकि आप जब जर्नल देखोगे तो जर्नल में बहुत सारे ट्रांजैक्शन वन आफ्टर द अदर, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। तो अगर आपको स्पेसिफिक यू वांट टू सी सम पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, यू कैन गो टू द लेजर एंड फाइंड आउट कि ये कहाँ पे आपको जर्नल में मिलेगा, क्योंकि वहां पे आपको फोलियो नंबर दिया रहता है, जिससे आप तुरंत ट्रेस कर लोगे कि जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आप ढूंढ रहे हो वो लेजर में कहाँ मिलेगा। जर्नल से आप लेजर पे आ सकते हो, लेजर से आप जर्नल में जा सकते हो, ठीक है। तो दे हैव जर्नल फोलियो एंड लेजर फोलियो, ठीक है। लास्ट स्टेज या लास्ट यू कैन से प्रोसेस है, स्टेप है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम ग्रुपिंग भी कर लिए हैं, हमने क्लासिफिकेशन कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे ट्रांजैक्शन की समरी बनाते हैं। दिस समरी इज नोन एज ट्रायल बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे हम टैली करते हैं, बैलेंसेस की टैली करते हैं, जो बैलेंसेस हमने लेजर से निकाले वो बैलेंसेस को हम टैली करते हैं कि वो डेबिट और क्रेडिट बराबर आ रहा है कि नहीं। इफ इट इज टैलिंग दैट मीन्स थिंग्स आर ओके, है ना। मोस्टली चांसेस है कि अगर वो टैली हो रहा है क्रेडिट और डेबिट तो मतलब बराबर है, दैट इज ओके। ऑल्दो देयर आर चांसेस कि टैली होने के बावजूद वहां पे गड़बड़ हो सकती है, लेकिन चांसेस कम रहते हैं। लेकिन अगर टैली ही नहीं हो रहा है पहले ही स्टेप में, इट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। तो उसके क्या स्टेजेस है, कैसे क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन कैसे होता है, वो अलग चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। So what you are doing is you are making a summary of all the ledger balances in the trial balance. और जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है ठीक ठाक आपका, from the trial balance you start preparing your financial statement, फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो फाइनली आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अपने ट्रेडिंग अकाउंट, अपनी बैलेंस शीट, ये सब प्रिपेयर करते हो विद द हेल्प ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ओके। So these are the various process, various steps of accounting, ठीक है। Now we move on to the next topic, that is basis of accounting. There are two bases. Basis मतलब किन तरीके से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, बेसिस क्या है ना।
There are two basis, cash basis and accrual basis, and now मिक्स्ड बेसिस भी आ गया है जिसको हम अलग से पढ़ेंगे, है ना. दैट विल बी अवर थर्ड टॉपिक. अभी पहले हम कैश और एक्रूवल बेसिस के ऊपर चर्चा करेंगे. तो कैश बेसिस एंड एक्रूवल बेसिस, वी विल टॉक अबाउट देम एंड वी विल डिफरेंशिएट देम राइट अवे. ठीक है, दोनों को कंपेरेटिव फॉर्म में हम पढ़ेंगे, दोनों को रिलेट करते हुए ही हम पढ़ेंगे. एक साथ में पढ़ते हैं ना तो समझ में आता है, अलग अलग पढ़ेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे. कैश बेसिस मतलब क्या होता है? कैश basis मतलब as soon as a transaction has occurred and the cash has been received or paid, जैसा भी ट्रांजैक्शन है, पेमेंट वाला ट्रांजैक्शन है तो आपने कैश पे कर दिया है, रिसीव वाला ट्रांजैक्शन है तो कैश रिसीव कर लिया है. whatever the type of transaction is, if the cash has been received or paid, in that case it is immediately recorded. उसको immediately रिकॉर्ड कर लिया जाता है. ये नहीं देखा जाता कि वो किस पीरियड का है ना, ये नहीं देखा जाता कि वो हमें रिकॉर्ड करना है कि नहीं. वी रिकॉर्डेड बिकॉज कैश हैज बीन रिसीव्ड और कैश हैज बीन पेड. एक्रूवल बेसिस में हम क्या करते हैं? वी हैव टू रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन. इनकम का ट्रांजैक्शन हम कब रिकॉर्ड करते हैं? जब इनकम हम एक्रू कर लेते हैं, एक्रू या अर्न कर लेते हैं, है ना. इनकम इज एक्रूड, इनकम इज अर्नड. अर्न मतलब सपोज करिए कि आपकी यू आर एन एम्प्लॉय, है ना, तो आपकी सैलरी अगर ड्यू हो गई है दैट मीन्स इट इज अर्नड, यू हैव ऑलरेडी अर्नड इट. अब कैश मिला है कि नहीं मिला है, अभी तक पेमेंट हुआ है कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं. आप उसको अपने बुक्स में दिखा सकते हो दैट यू हैव ऑलरेडी अर्नड इट. अर्न करना मतलब आपका उस पर राइट आ चुका है ना. अब आपको पेमेंट जब मिलेगा वो बाद में भी मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप उसका जिस पीरियड का वो एक्रूड है, जिस पीरियड में वो ड्यू हो गया है उस पीरियड में आप उसको दिखा सकते हो. सेम इज विद द एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर में भी पेमेंट, एक्चुअल पेमेंट का हम ध्यान नहीं देते कि आपने पेमेंट कब किया, कैश आपने कब दिया, है ना. चाहे वो पेमेंट एडवांस में हो, चाहे वो पेमेंट आउटस्टैंडिंग हो, हम उसकी रिकॉर्डिंग तब करते हैं जब वो ड्यू हो चुका है. जिस पीरियड को वो रिलेट कर रहा है उस पीरियड में हम आ चुके हैं, उस पीरियड के बारे में ही हम बात करें तभी उसकी रिकॉर्डिंग होगी. जैसे कि सपोज करिए रेंट है, रेंट ड्यू हो गया है, हम उसकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे भले ही रेंट पे नहीं हुआ है, ऑल्दो इट हैज नॉट बीन पेड. ठीक है, रेंट हैज नॉट बीन पेड लेकिन उसके पेमेंट की डेट आ गई है, वो ड्यू हो चुका है, हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे भले ही वो आउटस्टैंडिंग हो. ठीक है, दिस इज अवर एक्रूवल बेसिस. तो एक्रूवल बेसिस में हम टाइम को इम्पोर्टेंस देते हैं कि वो किस पीरियड में रिलेट कर रहा है, किस पीरियड में ड्यू हो रहा है, एक्रू हो रहा है, इनकर हो रहा है. हम एक्चुअल कैश पेमेंट या एक्चुअल कैश रिसीव में यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैश बेसिस में टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं देते, एक्चुअल पेमेंट या रिसीव पर ध्यान देते. ठीक है, कैश बेसिस डज नॉट रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन. ऑब्वियसली जब बात ही कैश बेसिस की हो रही है तो हम यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन को बिल्कुल इग्नोर करेंगे. अगर सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, क्रेडिट पे हो रहा है, वी विल नॉट रिकॉर्ड दैट. ठीक है, ओनली कैश सेल्स, कैश परचेजेस आर रिकॉर्डेड. ठीक है, जिस पे कैश एक्चुअल में पे हुआ है या एक्चुअल में रिसीव हुआ है बस वो रिकॉर्ड होगा. लेकिन हम जब एक्रूवल बेसिस की बात करें तो क्रेडिट सेल्स भी रिकॉर्ड होते हैं. हमारा जो सेल्स होता है वो टोटल सेल होता है कि कितना कैश सेल हुआ है, कितना क्रेडिट सेल हुआ है, दोनों को हम अपने रेवेन्यू में शामिल करते हैं, दोनों को हम रेवेन्यू का हिस्सा बनाते हैं. ठीक है, विच इज नॉट डन इन कैश बेसिस. उसके बाद क्या होता है, कैश बेसिस में क्या होता है, प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसीट माइनस पेमेंट. ठीक है, जो टोटल आपने कितना रिसीव किया माइनस टोटल आपने कितना पेमेंट किया, कैश, दैट इज योर प्रॉफिट अंडर कैश सिस्टम, अंडर कैश बेसिस. लेकिन जब आप एक्रूवल बेसिस की बात करो तो प्रॉफिट इज obtained by, profit or loss is obtained by matching the revenue and expenses, है ना. revenues earned and expenses incurred in the accounting period. एक accounting period में during one accounting period आप है ना revenues को expenses से match करते हो और उसके बाद आप देखते हो कि आपको क्या क्या revenues accrue हुए हैं और क्या क्या आपके expenses incur हुए हैं. मैच करने के बाद आप प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो निकालते हो. Okay, you don't see whether the actual payment has been made or actual money has been received. तो ये है हमारा एक्रूवल बेसिस और ये है हमारा कैश बेसिस.
one thing that you have to remember in the third chapter that we studied before this chapter, वहां पे भी आपने accrual concept पढ़ा था ना, वो यही accrual concept है. मतलब क्या है कि जो accounting है, it is based on accrual basis, accrual concept. Mostly सारे accounts accrual basis पे ही बनाए जाते हैं. ठीक है, हम सारे accounts accrual basis पे बनाते हैं और बहुत rare cases में cash basis यूज होता है. ठीक है, so all the transactions are recorded on accrual basis. Now we have come to the last section, that is mixed basis. Mixed basis क्या होता है? Mixed basis, mixed का मतलब क्या होता है? खिचड़ी. Mixed का मतलब some things have been mixed together. तो यहाँ पे basis की बात हो रही है, तो क्या चीजें mix हुई होंगी? The basis are mixed. Cash basis and accrual basis are mixed. ठीक है, hybrid बन गया है. Hybrid मतलब a mixture of cash basis and accrual basis. ये एक recent you can say recent मतलब ये नहीं कि आजकल में बना है, लेकिन हाँ, this is a new concept. Hybrid accounting is a new concept. यहाँ पे क्या होता है कि हम इनकम को तो हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब पेमेंट मिल जाता है ना. यहाँ पे हम बहुत ज्यादा you can say safe play करते हैं. We record our income only when it is received, but we record our payment when it is due. पेमेंट को हम जैसे ही वो ड्यू होता है हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन इनकम हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब हमारा इनकम एक्चुअल में रिसीव हो रहा है. ठीक है, बहुत सारे लोग, मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉलोइंग मिक्स्ड बेसिस बिकॉज इट हैज बीन अप्रूव्ड. ठीक है, ये जो सिस्टम है, ये इसको अप्रूवल मिल गया है. इट इज नॉट इलीगल सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग. तो ये लीगल सिस्टम है, इसको अप्रूवल मिल गया कोर्ट से, तो ये लोग फॉलो कर रहे हैं. और सबसे मेन चीज है ना, बहुत सारे टैक्स में आपको बहुत सारी यू कैन से एग्जेम्पशंस मिल जाते हैं, है ना. जब आप एक्सपेंसेस दिखाते हो ज्यादा, जितने भी एक्सपेंसेस आप दिखा रहे हो उसमें आपको एग्जेम्पशन मिलता है ना. और इनकम आप जितना ज्यादा दिखाओगे तो टैक्स ज्यादा लगेगा. तो ये लोग क्या करते हैं ना, सेफ साइड में रहने के लिए इनकम तभी दिखाते हैं जब वो एक्चुअल में रिसीव हो रही है. जब रिसीव होगी तब टैक्स देंगे, लेकिन जो पेमेंट है उनको वो रिकॉर्ड कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इनकर. जैसे वो इनकर करेंगे वैसे ही वो रिकॉर्ड कर लेंगे, है ना. तो इनकरेंस के बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं एक्सपेंसेस को, लेकिन पेमेंट के या रिसीट के बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं इनकम को, टू सेव टैक्सेस ऑल्सो. ठीक है, तो टैक्स मैनेजमेंट का भी तरीका है मिक्स्ड बेसिस. मिक्स्ड बेसिस मेंटेन करने से टैक्स में आपको फायदा मिलता है एंड इट इज अ लीगल सिस्टम. इसमें कोई इलीगल नहीं, कोर्ट का अप्रूवल मिल गया, इसलिए लोग इसको फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, so with this we have completed this chapter. It is a very small chapter. I hope you have understood and you have enjoyed. Even if you have any doubt, you can still contact me. I will clear it. Okay, complete all the questions which are given on based on this topic, and we will meet again in the next session with some new topic. Okay, thank you so much all of you.